morning students. My name is Kinjal Patel and I am your English teacher. Today we are going to learn a very new topic and titled as transformation. In this topic we are going to look about transformation of the sentences and the kinds of sentences that can be asked in your examination, and it is also one of the major topic of your grammar. This topic is for the both 9th English medium and 10th English medium. Right now, in the very first part of transformation, we are going to learn about what kinds of sentences are there can be asked as a transformation. Which kind of sentences, ऐसे कौन से प्रकार है sentences के जो आपको यहाँ पे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उसको आप कैसे पहचानोगे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. And then we will start how to convert that or how to transform that sentence into the another kind. Let's look about it. See, kinds of sentences, वाक्य के प्रकार. सबसे पहला प्रकार आता है as you can see on the board here student, assertive और declarative sentences. सबसे पहले जो प्रकार जो हमें देखना है that is assertive या declarative. इसका मतलब क्या होता है, as I have written at pointing by note, मैंने note लिख के एक अंडरस्टैंडिंग आपको समझ में आए ना, वैसे तो यू हैव लर्न दिस वन, बट टू गेट मोर ऑफ इट तो आई हैव जस्ट डिनोटेड विद द नोट वर्ड. ठीक है, आप उसको ध्यान से देखना. द सेंटेंस विच डिक्लेयर्स और असर्ट स्टेटमेंट, फीलिंग, ओपिनियन, इवेंट, अगर इनमें से कोई है ऐसा सेंटेंस which denotes or declares something, कुछ डिक्लेयर कर रहा है, जैसे I have pen, it is a declare, right? कुछ assert कर रहा है. यहाँ पे मैंने लिखा है, देखो एक एग्जांपल, as you can see, the earth moves round the sun. The earth, ये डिक्लेरेशन है कि भाई earth moves round the sun, it is a declaration. तो ऐसे कोई स्टेटमेंट when we just try to just show the feelings and we try to give the opinion about something, for that the sentence we are using is known as assertive or declarative sentence. The second thing, my dear student, you have to keep in your mind is that assertive or declarative statements always end with dot, that is known as full stop. full stop से वो end होता है. At the end of a statement you will find a full stop like this. ऐसा आपको full stop वहां पे दिखेगा. ठीक है, ये हो गया आपका assertive. I hope you have an idea about it. Now let's talk about interrogative sentence. Interrogative sentences क्या होते हैं? Sentences that ask a question or it requires for the information, right? ऐसे sentences को we are just knowing as an interrogative, a kind of statement in which we require some information or we ask some question about something to get, right? So those kind of statements are known as interrogative sentences. ऐसे प्रकार के वाक्य जिसमें हमें कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, उसके लिए हम पूछते हैं, या फिर किसी को इंफॉर्मेशन के बारे में और डिटेल में जानना हो तो उसके लिए जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, तब ये वर्ड यूज होता है या ये सेंटेंस फॉर्मेशन यूज होता है. As I have mentioned as an example on the board, as you can see, I have written one question that who are you? Who are you? Now interrogative sentences can be asked by two means. One of them is WH company, जिसको हम what, why, when, how etc वर्ड से पहचानते हैं. These are known as WH family. तो इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है. And the second question may be from a to be form.
टू बी फॉर्म ऑफ दैट पर्टिकुलर टेंस जो भी आप यूज कर रहे हो उसके टू बी फॉर्म जिसको आप हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इज, एम, आर भी आप लगा सकते हो, वाज, वर भी लगा सकते हो. दीज आर नोन एज टू बी फॉर्म. तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैन बी फॉर्म इन टू वे. नंबर वन इज WH कंपनी या फिर अ वर्ड विच स्टार्ट्स फ्रॉम WH. एंड द सेकंड इज टू बी फॉर्म. जो भी आपका टेंस होगा उसका जो भी टू बी फॉर्म होगा अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन पुट एट द बिगिनिंग ऑफ अ स्टेटमेंट एंड एट द एंड ऑफ अ स्टेटमेंट यू हैव टू राइट और you have to put a question mark. Only then and then your formation will be known as a interrogative sentence. Okay, now let's talk about imperative sentences. What are the imperative sentences? See, the sentence which shows request, order, command, suggestion, warning, threatened, right, all sorts of things. A sentence which denotes you a kind of request, maybe a kind of order, there may be a kind of command, there may be a kind of suggestion or advice. That those sentences are known as imperative sentences. Those sentences are known as imperative sentences. Now I have put one example over here. Kindly pass the book. यहाँ पे request है kindly pass the book. Please will you give me the pen? Yes. तो हम ऐसे पढ़ you are ordered to get the glass of water. Get me a glass of water. Right? तो ऐसे वर्ड जब आप यूज करते हो जहां पे आप रिक्वेस्ट आती हो, ऑर्डर होता हो, कमांड होते हो, सजेशन होती हो, एडवाइस आती हो, सॉरी फ्रेंड्स, दोज आर नोन एज इंपरेटिव सेंटेंसेस. उनको हम इंपरेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर वन, दैट इज ऑप्टेटिव सेंटेंसेस. What are the optative sentences? Optative sentences के अंदर we just use to wish something, right, or someone. हम किसी को कुछ प्रकार की wish indicate करते हैं. जैसे देखो यहाँ पे लिखा है the sentence which indicate wish or hope for good. I wish you all the best. These kind of sentences are known as optative sentence. जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है wish you all the best. तो ये एक ऑप्टेटिव सेंटेंस हुआ. गुड मॉर्निंग अगर हम बोलते हैं तो ये भी विश हुआ. राइट, होप फॉर द बेस्ट ये भी विश हुआ. तो ये सारी चीजें जो होती है, गुड लक हम बोलते हैं, राइट, बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं. तो दीज आर नोन एज ऑप्टेटिव सेंटेंसेस इन विच इट इंडिकेट्स द विश और होप फॉर समथिंग. विश फॉर समथिंग और hope for something. Agar it shows in the statement, then you should, yes, accept the sentence as an optative sentence. Now let's talk about exclamatory sentence. Exclamatory sentence में क्या होता है? The sentence which shows surprise or emotion, certain surprise, yes, sudden surprise, yes, sudden emotion. If a sentence is showing this one or indicating this one, then this sentence will be known as or can be understood as exclamatory sentence. I hope you have understood. I have given two examples for it as you can see on the board. See, don't talk, get out. Don't talk, get out. That's certain feeling. Emotion हम बता रहे हैं कि भाई बात मत कर, यहाँ से निकल जा. Right? ये emotion हमारी शो हुई. I'm so mad at her. ये भी इमोशन. आई एम सो मैड एट हर, ये भी इमोशन है. इमोशन आप उसको पॉजिटिव नेगेटिव की तरह आप यू कैन. ओके, नाउ ये जो सेंटेंसेस है, अगेन आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू दैट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आर व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंसेस व्हिच शोज और डिनोट्स सर्टेन सरप्राइजेस एंड इमोशंस ऑफ अ स्पीकर. तो वो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा. नाउ आई हैव गिवन यू all kinds of sentences that can be asked in the topic of transformation. We can ask assertive or declarative, interrogative sentences, imperative sentences, optative sentences, and exclamatory sentences. These are the types of sentences that can be asked in
the grammar topic entitled as transformation of a sentence. Now how it will be asked, कैसे पूछा जाएगा? It will be asked, you will be given for example assertive or declarative sentence आपको दिया गया, and in a bracket of that particular sentence you will be asked to convert into either negative, interrogative, imperative, optative, exclamatory, right? You can be asked. आपको इनमें से कोई एक प्रकार का स्टेटमेंट क्वेश्चन के फॉर्म में दिया गया होगा और ब्रैकेट के अंदर आपको वहां पे बोला गया होगा कि आप दूसरे इनमें से कोई एक में इसको कन्वर्ट कीजिएगा. नाउ लेट्स स्टार्ट इट. हाउ इट विल गो ऑन, कैसे चलता है वो, कैसे आएगा. नाउ वी आर जस्ट स्टार्टेड converting of the statements, or we can say transformation of a sentences. Let's talk about number one, that is assertive to interrogative. पहला, mind well, dear student, keep in your mind this one very keenly. आप बहुत ध्यान से उसको समझना, ठीक है. देखो पहला सेंटेंस, अगर मेरा क्वेश्चन assertive है, if my question is an assertive statement or declarative statement, if my question is assertive statement or declarative statement and I am asked to convert that assertive or declarative statement into interrogative, तो मैं कैसे करूंगा? तो just have a look. See, I have given one example of assertive sentence. assertive sentence मेरा है they play cricket. मेरे पास सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट है. आप ध्यान देना डियर स्टूडेंट, दे प्ले क्रिकेट. अब मुझे इसको क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है क्योंकि मुझे बोला गया है कि इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करो. नाउ टू कन्वर्ट द सिंपल सेंटेंसेस इनटू इंटरोगेटिव, वी हैव लर्न वन रूल एट अ लोअर लेवल, दैट इट ऑलवेज रिक्वायर्स आइदर WH company to start the question with, or you need, yes you are right, you need to be formed to convert that sentence into a interrogative. Now as you can see in the sentence, in the first question, neither you can see WH word nor you can see any to be form. यहाँ पे to be form कहीं है, देखो they play cricket, to be form भी नहीं है. Sir, how will we convert this sentence into interrogative? Let's talk about that. Now the first step is, पहला स्टेप क्या आप करोगे? Identify the tense. tense कौन सा है? अगर आपको यहाँ पे to be form नहीं दिया गया है या WH नहीं दिया गया है, नहीं हो सकता है, तो आप क्या करोगे? तो आपको क्या करना है, दो चीजें आप यहाँ पे ध्यान देना, बिल्कुल ध्यान देना कि पहले टेंस को आइडेंटिफाई करो. टेंस कौन सा है? यहां पे हमारा टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस. अब सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर आप जब टेंसेस पढ़े थे उस टाइम पे उसकी क्वेश्चन फॉर्मेशन या इंटरोगेटिव फॉर्मेशन याद करो. उसके इंटरोगेटिव फॉर्मेशन के अंदर हम या तो डू का इस्तेमाल करते थे या डस का इस्तेमाल करते थे. ये पहला स्टेप है. नाउ सेकंड स्टेप, आप ये आइडेंटिफाई करो कि मेरा सब्जेक्ट कौन सा है, यानी कहां पे डू आ सकता है और कहां पे डज आ सकता है. तो डज के लिए तो हमारे पास ईट, शी और ही, ये तीन ही थे जहां पे हम डज का इस्तेमाल कर सकते थे. इनका हम डज के साथ, बाकी सबके साथ हम क्या करते थे? डू का. अब हमें यहां पे देखना है, देखो क्या है? दे है. अब दे के साथ हमारा क्या आएगा? डू. तो अब वही रूल को हम अप्लाई करेंगे. हम क्या करेंगे? डू को सेंटेंस के सबसे आगे वाले पोर्शन में प्लेस कर देंगे. डू हो गया. अब क्या करेंगे? हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट को यहाँ पीछे ला दो, फिर बाकी फॉर्मेशन एज इट इज जैसी है ऊपर से वैसे नीचे डाल दो. नाउ यू हैव वन प्रॉपर फॉर्मेशन. प्रॉपर फॉर्मेशन इज दैट डू दे प्ले क्रिकेट. नाउ
रिमेंबर वन थिंग कि अगर आप इंटरोगेटिव बना रहे हो तो वो एंड होना चाहिए क्वेश्चन मार्क से, तो यहां पे क्वेश्चन मार्क पुट कर दो। ये आपका कन्वर्टेशन ऑफ असर्टिव स्टेटमेंट टू इंटरोगेटिव कंप्लीट हो गया। यू विल गेट 1 मार्क फॉर दैट। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेकंड एग्जांपल। चलो दूसरे एग्जांपल के बारे में देखते हैं। ही वेंट to market. Simple, as you can understand. He went to market. वे मार्केट गया। ठीक है, अब देखो यहां पे तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया था, अब इसको खुद से आइडेंटिफाई करो। चलो ये कौन सा टेंस है? वेंट आया है, आगे सब्जेक्ट है, टू बी फॉर्म नहीं है, पीछे ऑब्जेक्ट है। यस सर, दिस इज सिंपल पास्ट टेंस। आइडेंटिफाई हो गया। चलो सिंपल पास्ट टेंस की क्वेश्चन फॉर्मेशन में क्या आता था? टू बी फॉर्म कौन सा था? वेरी गुड डियर स्टूडेंट, इट इज डिड। सर ये भी नक्की हो गया, डिसाइड हो गया। नाउ व्हाट विल बी द नेक्स्ट? नाउ नथिंग टू डू, जस्ट पुट दिस वर्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टेटमेंट एंड डू इट। यस, यहां पे सॉरी, यहां पे आपको ही सब्जेक्ट जो मेरा है यहां पे आ जाएगा। आफ्टर डिड ही। अब एक और रूल था, वन मोर रूल ओवर देयर व्हाइल वी वर लर्निंग अबाउट सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस में एक और रूल था। वो रूल क्या था डियर स्टूडेंट? कि जब भी मैं कोई सेंटेंस के अंदर डिड का इस्तेमाल करता हूं, डिड का इस्तेमाल होता है, तो उसके बाद मेरा जो भी वर्ब आएगा, जो भी वर्ब आएगा वो उसका रूट फॉर्म लेके आएगा, यानी मेन वर्ब लेके आएगा। कौन सा वर्ब लेके आएगा? मेन वर्ब। अब यहां पे मैंने डिड का इस्तेमाल कर दिया है और वर्ब मेरा यहां पे था, तो यहां पे वेंट जो कि पास्ट फॉर्म में था, अब डिड लगने से वो अपने रूट फॉर्म में आ गया, वेंट का बन गया गो। हो गया। अब यहां पे क्वेश्चन मार्क। Got? ठीक है। Now this is how we have to convert the sentences, or we have to convert assertive sentences into interrogative, right? My dear student, one more thing that you have to keep in your mind, that when I am talking about a simple present tense, simple past tense, it can be asked in simple future tense as well. It can be asked as कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस। ठीक है, अगर मान लो कि यहां पे कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस का पूछा गया हो, मतलब यू आर बीइंग गिवन अ काइंड ऑफ सेंटेंस इन अ असर्टिव मोड, राइट? जैसे आपको बोला गया कि आई एम ड्राइविंग अ कार, या ऐसा पूछा गया हो कि यू आर राइटिंग अ लेटर, तो यहां पे आपको जो आर दिया है ना उसको आगे लेके जाना पड़ेगा। आर यू ड्राइविंग अ कार? Are you writing a letter? Means according to the tense of the assertive statement, you have to put to be form to convert that assertive statement into interrogative. And at the end of every interrogative sentences, and you have written as an answer, do not forget to put question mark at the end of the statement. I hope you have understood one. Please write it in your notebook and make it proper, right? Okay, thank you.
Hello dear students, my name is Kinjal Patel and I am your English teacher. As we have discussed about a new grammar topic entitled as transformation ka part 1 that we have already seen, in which we have seen the kinds of sentences, and we have also started one of the conversation or transformation of a sentence. In that process, let's move further and let's try to just change more assertive sentences into the another kind of formations. Now in that case, let's talk about if you are given an assertive statement as a question form, and if you are being asked to transform that assertive statement into exclamatory statement, then how will you convert this assertive into exclamatory sentence? तो उसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? You have to just focus, my dear students. See, if I am given a sentence, for instance, मतलब for example क्या है? It is a very interesting story book. If my assertive statement has a kind of adjective, जिसको हम यहाँ पे interesting बोलते हैं, यहाँ पे interesting है, story book तो है लेकिन कैसी है? Interesting है, तो इसको हम adjective बोलेंगे. तो इस एडजेक्टिव को उसके आगे मान लो कि वेरी या ऐसे कोई वर्ड दिए हुए हो और उसके आगे आर्टिकल या तो ए या एन ऐसा कोई आर्टिकल दिया हुआ हो तो इन दैट केस द सेंटेंस which is been asked in this formation will be converted into exclamatory with the word what. राइट? ऐसे सेंटेंसेस के जिसके अंदर एडजेक्टिव के आगे वेरी या ऐसे वर्ड यूज हुए हो और उसके आगे आर्टिकल का इस्तेमाल हुआ हो, तो ऐसे सेंटेंसेस को अगर हम एक्सक्लेमेटरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ज्यादातर ऐसे सेंटेंसेस व्हाट से शुरू किए जाते हैं इन केस ऑफ एक्सक्लेमेटरी. सी, एक्सक्लेमेटरी के अंदर व्हाट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी बुक इट इज, और पीछे प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू पुट एक्सक्लेमेशन मार्क, बिकॉज ऑफ दिस इफ यू हैव डन ऑल द सेंटेंसेस करेक्ट एंड यू फॉरगॉट or you just miss to put this punctuation mark, your sentence will be incorrect, right? It will be wrong, वो गलत हो जाएगा. So do not forget it. That is first case of assertive to exclamatory. Now let's talk about another case. The flower was very nice. In this case I am given very as we find in first statement, but here there isn't any article, right? ना ही a है ना ही an है, ऐसे कोई आर्टिकल वहां पे नहीं है. In that case we can start our sentence at the time of converting into exclamation by word how. हम ऐसे सेंटेंसेस को how से शुरू कर सकते हैं. as how nice the flower was, पीछे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दीजिएगा. I hope you have understood this one. Now let's talk about if you are given assertive statement in a form of question and if you need to convert that statement into imperative, then how it will be. Now just focus on it. Assertive statement like you requested to give me a glass of water. You are requested to give me a glass of water. या फिर आप you can say as a declaration, give me a glass of water, right? तो ऐसे अगर वर्ड हो और imperative का मतलब मैंने आपको बोला था, I have told you कि in which we find certain request, certain opinion, certain information, order, suggestions, advice, those kind of sentences which contains this feeling is known as imperative, right? तो उसके अंदर आप देखिएगा कि if I am asking in a form of question, you are requested to give me a glass of water या फिर give me a glass of
वाटर ऐसा दिया हो तो इसको आप इंपेरेटिव में कैसे डालोगे आप? प्लीज, आगे एक वर्ड डाल देना है प्लीज। इफ इट इज रिक्वेस्ट, प्लीज कॉमा गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, बात खत्म हो गई। सो सिंपल। नेक्स्ट, यू शुड गो टू द डॉक्टर। यहां पे आपको शुड दिया है और गो मतलब एडवाइस की गई है, नेचुरल है, राइट? तो यू शुड गो टू द डॉक्टर, तो ये एडवाइस है, तो यहां पे आप गो टू द डॉक्टर ऐसे करके आप कर सकते हो। सिंपल स्टेटमेंट, यहां पे इंपेरेटिव गो टू द डॉक्टर। यार दिस इज द फॉर्मेशन दैट यू कैन चेंज assertive to exclamatory. Now let's talk about imperative to assertive. अगर कोई इंपेरेटिव स्टेटमेंट दिया है उसको आपको असर्टिव में लेके जाना है। असर्टिव का इंपेरेटिव तो देख लिया, लेकिन इंपेरेटिव दिया हो और असर्टिव में जाना हो तो यहां पे देखो आप व्हाट यू विल डू। सी, आपको क्वेश्चन दिया गया है, काइंडली टेल मी योर मोबाइल नंबर। अब यहां पे काइंडली टेल वर्ड यूज किया गया है। कौन सा? काइंडली टेल मी। अब काइंडली यानी बहुत आराम से बात कर रहा है सामने वाला, बहुत एकदम, जिसको बोलते हैं ना प्रोफाउंडली टॉकिंग कहते हैं, वो बात कर रहा है। तो यहाँ पे इसमें बहुत डिसेंस दिखती है, तो इट इज अ रिक्वेस्ट। वी हैव आइडेंटिफाइड अवर क्वेश्चन कि काइंडली टेल मी योर मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे काइंडली या ऐसे कोई वर्ड यूज किए गए हो तो ऑब्वियसली वो रिक्वेस्ट ही होता है। तो आप कैसे करोगे? तो आपको ये वाला फॉर्मेशन याद रखना पड़ेगा। सी, यू आर रिक्वेस्टेड टू टेल मी योर मोबाइल नंबर। क्लियर? सिंपल है डियर स्टूडेंट, आपको सिर्फ इसको फोकस करने की जरूरत है। 2-3 बार आप पढ़ोगे ना अपने आप, ultimately yes your mind will accept the changes. Now let's talk about next example in the case as well. See, if you are given an example, take care of your health, अगर कोई आपको imperative statement में ऐसा बोलता है कि take care of your health, अब यहाँ पे टेक केयर ऑफ योर हेल्थ अगर मैं आपको बोलूं बेटा कि टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, देन इट इज अ काइंड ऑफ एडवाइस होती है, एक सजेशन भी हो सकता है, राइट? इट साउंड्स काइंड ऑफ एडवाइस। तो यहाँ पे आपको एडवाइस को शो करने के लिए असर्टिव स्टेटमेंट के अंदर शुड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये याद रखिएगा कि यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, आपको आपकी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। नाउ मान लो कि आपका इंपेरेटिव स्टेटमेंट कोई नेगेशन से शुरू होता है, जैसे डोंट ब्रेक द रूल्स ऐसे वर्ड से शुरू होता है, तो आपको पीछे शुड जो लगाना होता है ना, हमने आगे पढ़ा, तो शुड के पीछे नॉट लगा देना है। देखो यहाँ पे यू शुड नॉट ब्रेक द रूल्स, आपको रूल्स को नहीं तोड़ना चाहिए। ठीक है, ये आपका असर्टिव बन रहा है। नेक्स्ट, अगर आपका इंपेरेटिव स्टेटमेंट लेट से शुरू होता हो, LT वाला वर्ड एस इससे शुरू होता हो, और आगे उसको कोई आपको बताए कि देखो लेट अस रिस्पेक्ट अवर टीचर, चलो हम अपने टीचर्स को रिस्पेक्ट करें, तो इन दैट केस वी शुड यूज ओनली शुड वर्ड है। वी लेट अस का बन जाएगा वी, हमारे बारे में बात की गई है, इट इज टॉकिंग अबाउट यस वी पीपल। तो यहाँ पे वी हैव टू पुट अ सब्जेक्ट को यहाँ पे उसके ऑब्जेक्ट फॉर्म से निकाल के सब्जेक्ट फॉर्म में लाना पड़ेगा। ये उसका ऑब्जेक्ट फॉर्म है, वी का ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होता है? अस, तो अस का सब्जेक्ट फॉर्म क्या होगा? वी, तो यहाँ पे सब्जेक्ट फॉर्म डालना पड़ेगा वी शुड रिस्पेक्ट आवर टीचर्स। क्लियर? नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर वन। इफ यू आर गिवन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस टू द असर्टिव, अगर एक्सक्लेमेशन को आपको असर्टिव में कन्वर्ट करना है, हमने यहाँ पे पढ़ा था असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी, अब एक्सक्लेमेटरी दिया है और असर्टिव में जाना है, तो आप कैसे जाओगे? तो आपको पहले असर्टिव का जो काइंड है ना उसको पहचानना पड़ेगा। द काइंड ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कौन से है वो आपको समझने पड़ेंगे। देखो यहाँ पे फोकस, जरा ध्यान देना,
If my exclamatory statement start with alas, sorrow, ऐसे वर्ड से शुरू होते हो, in that case यहां पे आप shows a kind of sad feeling, है ना, pessimism वहां पे है, तो यहां पे आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी, alas, रंजित failed in the examination, alas, रंजित failed in the examination। अरे क्या दुख की बात हुई कि रंजित एग्जामिनेशन के अंदर फेल हो गया, तो आपको ये समझ में आ गया कि इट इज सैड मोमेंट। तो यहां पे आपको जब उसका असर्टिव करते हो तो इट इज सैड दैट, ये खराब बात हुई कि, फिर हमारा ये स्टेटमेंट आपको लिख देना है, रंजित फेल्ड इन एग्जामिनेशन। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर। इफ यू आर आस्किंग a question of exclamatory and it start from bravo or marvelous, ऐसे कोई वर्ड से शुरू होता है, at that time or in that case you should understand that when we use bravo or marvelous, when we take a kind of pride moment, जब गर्व होता है, ऐसी कोई बातें होती है, तब हम bravo या well done या फिर मार्वेलस ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सेंटेंस आपने पकड़ लिया, उसकी इमोशन को अंडरस्टैंड कर लिया, नाउ उसको हम कन्वर्ट करेंगे कैसे, ब्रेवो, राजा हैज प्लेड वेल, क्या बात हुई, राजा तो बहुत अच्छा खेल रहा है, तो उसके लिए हमें चेंज करना पड़ेगा, इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज। ये वाला वर्ड दिख रहा है आपको, इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज, मतलब हम उसकी क्या कर रहे हैं, बड़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। दैट, बाकी का जो स्टेटमेंट हमारा होगा वो वही का वही पीछे लगा देना है, लेकिन ये मत भूलिएगा दैट डालना, क्योंकि यही कनेक्टर है, इसी चीज से वो हमारा असर्टिव बनेगा, वरना नहीं बनेगा। ठीक है ना, इसको आप डू नॉट फॉरगेट प्लीज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर एग्जांपल। इफ माय एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस in a form of question start with hurrah, right, hurrah, yippee, ऐसे वर्ड से अगर स्टार्ट, we have won the match, तो इसके अंदर आपको बहुत सारी खुशी मिल रही है, हैप्पीनेस हो रहा है, यू कैन अंडरस्टैंड, हुर्रा, है ना, हुर्रा, टुडे वी हैव नो स्कूल, यस। नाउ ऐसे अगर वर्ड आपको मिलते हैं तो पहले, सबसे पहले आप क्या करोगे, identify the emotion and according to the emotion you have to see, dear student, यहाँ पे एक चीज कॉमन जा रही, it is said that I alas था तो sad कर दिया, यहाँ पे bravo था तो praise कर दिया, it is a matter of praise, तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे, it is a matter of, किसकी थी ये, हुर्रा, तो मैंने आपको बोला ना it is a matter of joy, happiness, तो it is a matter of joy, लिख लिया, हमारा मैक्सिमम काम तो हो गया। अब बचा कनेक्टर, put connector that in this statement and mention the rest of the statement which you have left, लिख दिया। now we have converted our statement, ये हमारा statement conversion complete हुआ, the transformation of the exclamatory sentence to assertive has been completed। now let's talk about two more example which is a kind of it has a certain issues with the students when they are just talking or converting these kind of sentences that I am going to tell you right now, तो उसमें थोड़ी problems they just face। कैसे होती है देखो, if you are asking a exclamatory sentence as a real condition, जब कोई real condition में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दिया जाता है and if you are being asked to convert that real condition into the assertive, at the time some of the student may have difficulties to convert, see, but you do not need to, you need to just understand it, the basic point। see, if you study better for next examination, ये हमारा एक्सक्लेमेशन था, क्या था, if you study better for next examination, अब उसको मुझे कन्वर्ट करना है असर्टिव में। अब यहाँ पे मैंने इफ दिया है और रियल यहाँ पे बताई गई है कंडीशन, यू स्टडी बेटर फॉर नेक्स्ट, ये रियल कंडीशन है, नई एग्जाम के लिए आपको अच्छा तैयारी करना है, राइट, तो ये रियल कंडीशन बताइए, तो रियल कंडीशन के लिए होप है ना,
अगर आप नेक्स्ट एग्जामिनेशन के, इस एग्जामिनेशन में तो जो हुआ वो हुआ, लेकिन नेक्स्ट में, तो ये जब हम नेक्स्ट की बात करते हैं, देयर में रेज अ सेंस ऑफ होप, है ना, एक होप की रेज निकल के आती है, तो वी यूज दैट पॉइंट। सी आई होप यू स्टडी बेटर, सिर्फ इतना ही लिखना है। इफ यू स्टडी बेटर की जगह पे आई होप यू स्टडी बेटर, बाकी का एग्जाम्पल यानी बाकी का स्टेटमेंट आपका एज इट इज रहेगा। इन केस ऑफ रियल कंडीशन, अगर वो सेंटेंस हमारी रियल कंडीशन की है तो सर ये तो हमें समझ में आया, दैट इज व्हाट वी हैव अंडरस्टूड, बट व्हाट अबाउट इफ देयर इज अनरियल कंडीशन, अगर वहां पे अनरियल कंडीशन हो तो क्या करें? तो सी, इफ वी आर गिवन द क्वेश्चन इन अ फॉर्म ऑफ अनरियल कंडीशन, देखो, इफ आई वर अ किंग, a person who is not really a king but he assumed that if I were a king, अगर मैं राजा होता, if I were a god, अगर मैं भगवान होता, if I were a bird, right, अगर मैं पंखी होता, पक्षी होता, तो ये सारी चीजें जिसको हम अनरियल बोलते हैं, जो इट इज नॉट पॉसिबल टू हैपन, तो इसमें हम अनरियल कंडीशन बोलते हैं। तो अनरियल कंडीशन में आप सिर्फ विश कर सकते हो, क्या कर सकते हो? यू आर विश, क्योंकि मैं बोलता हूं जबकि इफ आई वर अ बर्ड, अगर मैं पक्षी होता तब, इसका मतलब है मैं पक्षी जैसा विश कर रहा हूं, मैं विश कर रहा हूं कि अगर मैं होता तो यहां पे आपको ये पकड़ना पड़ेगा कि अनरियल कंडीशन जब भी होती है जहां पे वर का इस्तेमाल आई के साथ दिखेगा आपको, ये पहचान है इसकी। द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अनरियल कंडीशन इज यू विल बी गिवन आई, ही, जो भी दिया हो सब्जेक्ट, उसके बाद में आपको वर्ड दिया गया होगा और उसके स्टार्टिंग पॉइंट पे आपको इफ दिया गया होगा। दिस इज द आइडेंटिफिकेशन, हाउ टू आइडेंटिफाई द अनरियल कंडीशन, एंड वंस यू आइडेंटिफाई द रियल अनरियल कंडीशन, हाउ विल यू कन्वर्ट और हाउ विल यू ट्रांसफॉर्म इट? बाय पुटिंग आई विश। आप क्या वहां पे पुट करोगे? आई विश, आई विश I were a king. I wish I were a king. I wish I were a king. मैं विश करता हूं कि मैं राजा होता, शायद या काश में राजा होता। I hope my dear student you have got maximum idea about transformation of assertive to exclamatory, assertive to imperative, imperative to assertive, exclamatory to assertive, and that's all. Now just after this we are going to learn about some more conversation of sentences. Thank you.